Hello, good morning, everybody. Uh, am I audible? Khushi Rawal. Yes, sir. Okay, fine. So we will start within 2 minutes. Okay. Uh, we are going to learn some beautiful and very interesting uh, lab practical of the surveying. So that will help you a lot in the future and in the current condition as well. Okay. So we will start our lecture, our lab session within 2 minutes. Okay. So that everybody can join. So okay, so majority of the students are in 23 students are there. Let me check it out. કોણ બાકી છે? કોણ જાવી ગયા છે? વિકાસ તેત્રોજા છે? નથી. રાજકુમાર નથી. ચૌધરી દીપક કુમાર ચૌધરી યસ. અંકિત કુમાર મિશ્રા અંકિત કુમાર મિશ્રા Yes, sir. okay. Okay, so majority have joined the lecture. We will wait for one more minute. So if anybody in case of any network issue, after that we will start. Okay. So I'm giving you one question till that for 1 minute. That if you want to find out the area of this kind of figure, let us say. So how will you calculate? Just think about that. And if you have any kind of clue, then just mention yes Sir, in the chat sir, box. Yes, yes. Wait a minute. Wait a minute. Just mention yes, so I can get the idea who want to give the answer. Okay. If you want to find out the area of this figure, how will you calculate? Okay. Okay. अंकित कुमार मिश्रा, आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे एरिया? इसको सर छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। इसके बाद हाँ, हाँ। मैं क्या करूंगा, सिंपल ऐसी एक, हाँ, जो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, ठीक है? जी सर। चैट बॉक्स, हाँ, चैट बॉक्स जो दिख रहा है मैं जूम करता हूँ, ठीक है? हमने क्या किया, ये यहाँ पे आप दिख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर दिखेगा, राइट? यस। तो ऐसा स्क्वायर आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं जैसे ही जूम इन जूम आउट करूंगा तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे और एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे।
उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं वो गिन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, दैट इज द राइट आंसर. एनी अदर मेथोडोलॉजी? એની અધર મેથોડોલોજી? સર આપણે જ્યારે પહેલા સ્ટાર્ટ કર્યું તો ત્યારે તમે કીધું હતું કે ટ્રાયંગલ્સ માં કરતું જવાનું. હા, so you can divide this figure into very non geometry, that is your triangle, squares, rectangles. okay, जिस फिगर का आपको एरिया मालूम है, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि स्क्वायर का एरिया क्या है, तो इट इज सिंपली लेट अस से द साइज ऑफ दैट स्क्वायर इज 5 मीटर. so 5 मीटर बाय 5 मीटर दैट इज 25 मीटर स्क्वायर. सो वो हो गया आपका एरिया. ठीक है, तो ट्राइंगल का भी आपको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, सर्कल का भी पता है, लेकिन सर्कल हम नहीं यूज करते क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज दैट सर्कल. अगर मैं यहाँ पे सर्कल्स बनाता जाऊं, ठीक है, लेकिन ये बीच वाला जो है यहाँ पे ऐसे 3 सर्कल बना है, तो बीच वाला एरिया रह जाएगा, है ना, उसका भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वी विल यूज ओनली ट्राइंगल्स. लाइकवाइज लेट अस से સર આપણે ઓલા દિવસે લેક્ચરમાં ભણ્યું તો ઈ મેથડ એ થાય ને, વચ્ચે એક મેઇન ડાયગોનલ લાઈન કરીને ઓફસેટ કરી દેવાનું. हाँ થઈ શકે. yes yes right right, you can do that thing also. I am redrawing that figure. Let me try. Okay, so what we can do, we can find out a longest line on this figure. Likewise, so that is the triangulation process. I will find a longest line. Let us say this is the longest line. Then what we can say, we will divide this. Once again, we will find out the shortest one also. Right, so इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं. Let us say like this. Am I right? This is your offsets. हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था, आप ऑफसेट ले सकते हैं. ये मान लीजिए आपका ये तालाब है, राइट, और तालाब की सेंट्रल लाइन मैंने पहले ले ली और उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, राइट. और ये डिस्टेंस हमारे पास है सभी, ऑफसेट चेंज सर्वे आपने किया है तो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो मेथड. यस, यू आर राइट. एनीथिंग एल्स? Anybody? Okay, fine. So today we are going to calculate the area of the irregular figure by an instrument in the surveying laboratory. Okay, so the name of the instrument is the planimeter. अगर आपको किसी भी irregular शेप की फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है प्लानीमीटर. तो वो प्लानीमीटर जो है, तो आपको सबसे पहले इसका नाम जो है आपको लिखना पड़ेगा. लेट अस से प्लानीमीटर. तो दिस इज अवर थर्ड प्रैक्टिकल. यू कैन सी, आई होप दिस इज द विजिबल टू यू. प्रैक्टिकल नंबर 3, यूज ऑफ द प्लानीमीटर. सो planimeter is an instrument which can find out area of any irregular figure. Okay, right? So write down in your notebook that practical number 3, use of the planimeter, and I will show you how it works. Okay, and how we can calculate the area by planimeter. So write down this first. Meanwhile, write down the objectives and apparatus also in your notebook. Okay, why I'm insisting you to write down, because it will help you a lot. Okay, so write down that thing. Okay, have you written that or is it pending? Write down the objective. So the objective of the planimeter practical is to learn the functions and applications of the planimeter. Okay, application you are aware about. That means you can easily find the area of any irregular figure.
any kind of irregular figure. Okay, then what do you require as an instrument? First of all, planimeter, one empirical drawing sheet. Okay, so drawing sheet is also required. Then let us see the image first so that you can get idea. I'm going back to the serving practicals. We will see the photograph first, so you will get the idea. You can see this is the planimeter instrument in the box. You can see. Is it visible to you? Yes, sir. Okay, fine. So I'm little bit zooming in. So this is the box. When you unbox the planimeters box, so you can see there is a card over there. It is the ID card of the instrument. You can say, ठीक है, जैसे आपका आईडी कार्ड है कॉलेज का, स्कूल का, इलेक्शन का, है ना, वैसे ही इस प्लानीमीटर का एक आईडी कार्ड होता है. हर प्लानीमीटर का आईडी कार्ड अलग अलग होता है. ठीक है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया होता है, जैसे आपके आईडी कार्ड में एनरोलमेंट नंबर, नेम, आपकी बर्थ ऑफ डेट, ओके, देन व्हाट इज द ब्रांच, ये आपका लिखा हुआ. तो वैसे ही ये आईडी कार्ड में कुछ प्लानीमीटर के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, वो मैं हम डिस्कस करेंगे बाद में. सो प्लानीमीटर दिखता ऐसा है. ठीक है, हियर यू कैन सी देयर आर वन स्टील आर्म इज देयर and one black arm is there. You can see. So name of that black arm is anchor point or anchor arm. ठीक है, क्योंकि उसके पास एंकर पॉइंट है, ये हम दिखेंगे. ठीक है, उसके बाद ये उसका आईडी कार्ड है. ठीक है, यस, ऐसा दिखता है प्लानीमीटर. ठीक है, वहां पे क्या होता है, मैं आपको कंपोनेंट थोड़े बहुत बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ये उसका पहले आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं. टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड सेटिंग इन द मैट्रिक सिस्टम. ठीक है, तो हर एक जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो और यहाँ पे ये आईडी कार्ड नहीं है उस प्लानीमीटर में, तो वो प्लानीमीटर आपको यूज करना नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई आईडी कार्ड ही नहीं है. ठीक है, सो दैट इज आईडी कार्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ हियर यू कैन सी दिस पॉइंट, दिस इज द एंकर पॉइंट. ठीक है, क्योंकि वो हम एंकर के लिए यूज करेंगे. तो ये हो गया आपका ब्लैक कलर का जो है वो पूरा हो गया आपका एंकर आर्म. राइट, सो दैट इज योर एंकर पॉइंट और एंकर आर्म. दूसरा जो है स्टील का बना हुआ है वो है ट्रेसिंग आर्म, जिसकी मदद से हम ट्रेस करेंगे. ठीक है, तो वो हो गया ट्रेसिंग आर्म, और ये जो पॉइंट हुआ वो हो गया ट्रेसिंग पॉइंट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है रीडिंग लेने के लिए मैग्नीफ्लाइंग ग्लास रखा हुआ है. मैग्नीफ्लाइंग ग्लास बिलोरिकास्ट, बरोबर, મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ તમે રાખ્યો છે. પછી કંઈક રીડિંગ લેવા માટે કંઈક વ્હીલ્સ આપેલા છે. યુ કેન સી. સો this system we will understand first, then we will take the readings. So any doubt in this, you can take a screenshot of this. Okay, so this is the instrument called the planimeter. This instrument can be used as a instrument to find out the area of any irregular figure. Okay, so I can simply ask this in examination also, short questions, MCQs, to draw a planimeter sketch. Now how you can draw this 3D sketch? Okay, so उससे लिए हमने लेबोरेटरी मैन्युअल में आपके ई कंटेंट में है, मैंने आपको एक इमेज दिखाई है. ठीक है, तो इसका अलोंग विद द कंपोनेंट जो फिगर है हम आपको दिखाते हैं. यस, दिस इज द दैट फिगर. राइट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. मैंने आपको पहले 3D वाला बताया ओरिजिनल जो हमारी लेबोरेटरी में है, उसके बाद मैंने जो आपको यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल वाला जो स्केच आपको कैसा बनाना है फिगर, वो आपको बताया है. राइट, सो कैन यू ट्राई टू ड्रॉ दिस फिगर इन 5 मिनट्स? ट्राई कीजिए आप कैसे आप बनाते हो. सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ. ये मैंने फिगर है. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया. आपको सबसे पहले क्या बनाना है ये आप देख लीजिए. ये प्लानीमीटर है, पार्ट्स ऑफ प्लानीमीटर. सबसे पहले आपको ये ट्रेसिंग आर्म बनाना है. ठीक है, दैट इज अवर फर्स्ट रैंक. सीधी लाइन खींच दीजिए 3. ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप बना दीजिए. उसके बाद आप क्या करेंगे,
दूसरा पार्ट ये है कि जो आपका मेजरमेंट जो है उसके सपोर्ट क्या है, सपोर्टिव कौन सा रहेगा, तो ये आप बनाएंगे सपोर्टिव पार्ट। उसके बाद आप एंकर आर्म बनाएंगे, थर्ड वन, राइट, दिस इज योर थर्ड पोर्शन। तो एंकर आर्म से जुड़ी हुई सारी चीज आप बनाएंगे, वेट है, एंकर पॉइंट है, वो बनाएंगे। ओके, 3 4 5। उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है फोर्थ, वर्नियर है, व्हील है, काउंटिंग डिस्क है, वो बनाएंगे, राइट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई एम गिविंग यू 5 minutes टू draw this figure, because I will definitely ask this figure in your examination. Okay, so I have a just rough drawing of the planimeter. Okay, so you can see on your screen. So exactly we will meet the 955. Okay, till that you just draw this figure in your notebook, and try to use landscape mode, not in portrait mode. बरोबर, आपको पेज जो है वो आड़ा रखना है, सीधा जो है सीधे पेज में वो नहीं आएगा, है ना। सो दीज आर द फर्स्ट, आपको ट्रेसिंग आर्म बनाना है, उसके बाद उसकी सपोर्टिव मैकेनिज्म बनानी है, उसके बाद आप एंकर आर्म बनाइए, एंकर पॉइंट बनाइए, उसके बाद जो सारा जो व्हील वाला बनाइए, और लास्ट में जो है वो जो बच्चा कुछ चाहे वो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम रिमूविंग दिस थिंग्स, and yes, this is the complete image. Okay, so if you complete this figure, just simply mention yes in the chat box. Okay.
So how many of you have done completed? Pending કેટલા pending કેટલા છે? Write down no. સર હું પેન્ડિંગ માં. Write down no in the chat box. Okay, Jala. Okay, fine. Okay, બાકી છે? ચાલુ રાખીએ. Okay, fine. Majority students are doing with that. Okay, not an issue. You can take a screenshot of that also. Okay. So yes, I'm giving you 2 more minutes. Try to complete within the time span, because when I ask in the examination, you have a limited time. That is why. Have you understand what I'm trying to convey you? Different parts are there. You need to understand that parts first, then we can perform a practical. Okay, fine. So we require 20 to 25 minutes to perform the practical. So I hope that you have getting that figure. Can anybody show me their figure? Can anybody send me in on WhatsApp? Have you completed that? अगर आपका पार्शियली 90% 80% कंप्लीट हुआ है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं, वो वाली फिगर व्हाट्सएप पे अभी फोटो लेके. Okay, those students are pending with the figure. They can do it with the later one. You can just take a screenshot of this. Okay, take a screenshot of this and just try afterwards. Okay. So I hope that you have taken the screenshot. And now can anybody who will send me, simply mention yes so I can get that. आपका अगर 70% भी कंप्लीट हुआ है और उससे ज्यादा तो आप मुझे भेजिए. ठीक है सर, ये सब बनाया है मैंने. Am I audible to you? Simply mention yes in the chat box. સર મોકલી દીધું WhatsApp માં. આનંદ જોશી, હા મોકલ્યું, મને મળ્યું છે. ઓકે ઓકે ફાઇન, સરસ છે. ઓકે ગુડ. Just mention that all the components. Okay, otherwise everything is fine. Okay, but you need to be quick during the examination. Okay. Okay, fine. Anybody else? ચલો, એક સરસ આપણને મળ્યું છે. Well done. If I can show it to you via my mobile screen. Just a minute, I am trying to join that meeting. Anybody else?
Okay, now I'm sharing a screen with you, and what Anand has said, that I will simply put that. Okay, now I am sharing a screen with you. What he has sent to me is, you can see, this is a very good figure, you can say. Okay, relatively good. Okay, so this is the figure from the Anand Joshi. Can anybody else share that thing? So I can also show that on the classroom. બીજું કોઈ મોકલી શકશે? Otherwise, we will start our practical. Okay, so you can. I hope this thing you will. Okay, so nicely drawn. You can see that all the components are there. This is a good figure. Okay, relatively good. Okay, fine. Okay, so this is for the practical purpose. Now I'm resharing my screen with you, and let us try to understand the how we can take a reading from that. Okay, so I'm sharing a screen with you, and this is the parts of the planimeter. If I zoom this portion, vernier, wheel, and the counting disc, okay, so you can see that for the reading purpose, we have a counting disc, that is our first portion. Second one is the wheel, that is your roller, and third one is the vernier. Okay, now we will see this thing. If I zoom this part, it look like this. So for the drum and disc mechanism, ये जो वाला पार्ट है रीडिंग लेने के लिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका मेजरमेंट आप कैसे लेंगे उसके हिसाब से है, ठीक है। तो आपके माइंड में ये इमेज फिक्स हो गई। अब मैं ये वाला पोर्शन काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में 3 वर्ड होने चाहिए। नंबर 1, दैट इज दिस इज अ काउंटिंग डिस्क, जिसके ऊपर 0 से लेके 9 तक फिगर्स बने हुए। उसके बाद से यहाँ पे इंटीग्रेटिंग डिस्क, दैट इज योर व्हील, रोलर व्हील, एंड उसके बाद जो आखिर में है वो वर्नियर है, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले जो है प्लानिमीटर के कुछ फोटोग्राफ है, आप वहाँ देख लीजिए जब जो आपने बनाया है, ठीक है। तो वो आपको आसानी रहेगी समझने में, राइट। आप फोटोग्राफ देख लीजिए, ठीक है। आईडी कार्ड हमने देखा, ठीक है। दिस इज द आईडी कार्ड। फोटोग्राफ मैंने अलग अलग, दिस इज द एंकर आर्म, ओके। ब्लैक कलर का जो है वो एंकर आर्म है, ठीक है। आप नीचे से देखोगे तो एंकर पॉइंट है, इसीलिए उसको एंकर आर्म कहते हैं, ठीक है। आपने सबमरीन या फिर जो स्टीमर्स है उसमें एंकर होता है ताकि वो शिप कहीं समुद्र में दूर ना चली जाए, ठीक है। एट द बैंक, एट द शोर। तो एंकर पॉइंट है, तो एंकर पॉइंट की वजह से उसका नाम एंकर आर्म है, ठीक है, राइट। उसके बाद यस, दिस इज द एंकर आर्म, ब्लैक। यू कैन सी हियर देयर इज ए वन स्टील bolt is there which is connected to the planimeter, and second end is the open one, okay. Then you can see this is the magnifying glass for the reading taking, okay. So this is the arrangement for the tracing arm. You can see the tracing point is there here. Then tracing arm is there on which once again marks is there, 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter, okay, like a scale. This is the arrangement of the counting disc, roller wheel and vernier, okay. आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेसिंग आर्म के साथ कनेक्ट क्या होता है, ये आपका मेजरमेंट का मैकेनिज्म। तो उसमें क्या होता है, एक काउंटिंग डिस्क है जिसके ऊपर लिखा है 0 से 9 की ओर। उसके बाद एक रोलर व्हील है, उसके ऊपर लिखा है 0 to 10 विच इज हैविंग 100 डिवीजन, ठीक है। 1 2 3 से लेके 100 डिवीजन है उसमें। और उसके बाजू में जो व्हाइट कलर का है वो वर्नियर है, राइट।
आप ये ट्रेसिंग आर्म है, आप देख सकते हैं उसमें लिखा है 0 से लेके, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट दिखा है, ठीक है, यस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रेसिंग आर्म जो है उसकी लेंथ हमें फिक्स करनी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, राइट, मैग्नीफाइंग ग्लास में। और ये काउंटिंग डिस्क है, तो हमें काउंटिंग डिस्क पे पहले रीडिंग लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, यहाँ पे एरो है वो ये वाला पोर्सन, राइट। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपकी नजर वहां पे रहे, राइट, इसके ऊपर नजर रखिए, ये वाला जो दिस इज अवर इंडिकेटर, राइट, ये काउंटिंग डिस्क का इंडिकेटर है, ठीक है। तो इंडिकेटर आपको ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद हमें ये रीडिंग्स यहाँ से लेना है, रोलर और वर्नियर से, ठीक है। उसके अलावा ट्रेसिंग आर्म की लेंथ जो है अभी कितनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 के साथ कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर और 14.5, 14.6, 7, 8, 9, 0, दैट मीन्स 15। तो 15 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, दैट मीन्स वी कैन अज्यूम दैट 14.97 और 99। ओके, सो दिस इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द ट्रेसिंग आर्म, वी विल सी दैट। ओके, देन यू कैन सी, यस दिस इज द कंप्लीट वन, आप आसानी से देख पाओगे, राइट। तो ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, मैंने इसको कंप्लीटली जूम कर दिया है, अब इसके ऊपर नजर रखिए। ये वाला जो है वो हमारा इंडिकेटर है, जैसे हमने फैन में होता है, फैन के रेगुलेटर में होता है, हमें अगर 5 पे पंखे रखना है तो आप क्या करोगे, इंडिकेटर पे 5 रखोगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिकेटर जो है वो काउंटिंग डिस्क में 3 और 4 के बीच में है, राइट। ऊपर से देखोगे तो पता चलेगा, ये हम सीखेंगे। तो आपका रीडिंग पहले काउंटिंग डिस्क में से 3 आएगा, क्योंकि मिनिमम आपको लेना है 3 और 4 के बीच का है, तो मिनिमम आपका लेना है 3 पॉइंट। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी रोलर इज देयर इन विच यू कैन सी दैट 0, इसको रोटेट करके वापस से यहाँ 90, 91, 92, 93, 4, 5 एंड 96, 97। तो ये 0 यहाँ पे टच कर रहा है, वो हो गया 96, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। ऊपर से आप देखें तो इस तरह से दिखेगा, राइट। तो अभी का किसके बीच में है, 5 इंडिकेटर, ये हमारा है इंडिकेटर ट्राइंगल वाला। तो अभी किसके बीच है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 में से बीच में है, तो आपका पहला डिजिट क्या हो गया, 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे का रीडिंग हम सीखेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, रीडिंग, राइट। यहाँ पे भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग रीडिंग्स है, ठीक है। ओके फाइन। तो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि वो रीडिंग वाला काम कैसे करता है, ठीक है। तो वीडियो में उसमें आवाज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रोटेट और काम कैसे करता है इसके लिए मैं आपको, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू, दिस वीडियो इज विजिबल टू यू। Yes, sir. Okay, fine. So meanwhile, you can take a screenshot of that also. Just observe the movement of a zero. आपको क्या करना है कि जीरो वाली जो है, यहाँ पे जीरो है काउंटिंग डिस्क पे, वो कितनी बार इंडिकेटर से प्लस जाता है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इंडिकेटर आपका यहाँ पे है, मैंने एरो लगाया है। तो अभी क्या है कि 3 और 4 के बीच में है, राइट। जिससे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा वो काउंटिंग डिस्क भी रोटेट होगी, और वो आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी बार जीरो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ, उस इंडिकेटर से पास हुआ, वो आपको मेजर करना है, ठीक है। तो आप रफली आप देख लीजिए, ठीक है, मैं आपको इसको प्ले करता हूं। तो काम ऐसे करता है, ओके, यू कैन सी दैट फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो, ठीक है। मैंने इसको रोटेट किया तो वो काउंटिंग डिस्क ऐसे घूमने लगेगी, राइट, राइट, दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, ठीक है, कि वो जीरो जो है, अब यहाँ पे जीरो है, तो जीरो कितनी बार इस इंडिकेटर से पास हुआ, आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है एक बार, तो +1 लिखना है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि उल्टा घूमता है, तो अब आपको क्या लिखना है, -1। उसके बाद हम टोटल कर देंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एंड वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स जीरो पास टू दैट इंडिकेटर। तब आपको मैं बताता हूं कि जैसे मैं इसको, अभी ये क्या है कि जीरो एकदम करेक्ट पोजीशन पे है, जस्ट ए मिनट।
अभी क्या है कि 0 जो है वो एग्जैक्ट इंडिकेटर पे है, राइट। अब जैसे मैं रोटेट करूंगा वो एक बार क्रॉस हो जाएगा इंडिकेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी होगी, +1, ठीक है, +1। ओके, अब वापस से मैं घुमाता जाता हूं, सो दैट इज योर +1 वैल्यू, राइट। वापस से हम देखें यहां से मूवमेंट की बाजू में, तो ये रोटेशन इस तरह से होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको धीरे धीरे रोटेट करता हूँ कि कितनी बार 0 जो है वो क्रॉस होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक। पहले मैं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाता हूँ, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम काउंट करते जाएंगे साथ में, ठीक है। अभी क्या है कि 0 जो है ऑलरेडी इंडिकेटर क्रॉस हो चुका है, ठीक है, तो वो हमें काउंट नहीं करना, जब से रोटेशन स्टार्ट हो तभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी जो मैं वापस से प्ले करता हूँ, यस, 1 1 एक बार पास हुआ, ठीक है। अब रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन दूसरी बार पास हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हुआ, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, पहले हमारे एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हुआ तो +1 लिखा, राइट। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो -1 लिख दिया, तो +1 -0, राइट। एलजेब्रिक सम लगाना है। मान लीजिए अगर ये रोटेशन होता होता आपका 5 बार प्लस में जाता है, यानी कि 5 बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब पहले जोर से घुमाया तब वो कितनी बार रोटेट हुआ आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे रोटेट किया आप देख लीजिए, ठीक है, ये अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा था, तो जैसे कि मान लीजिए कि वो 5 बार क्रॉस हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो हमारी एन की वैल्यू क्या होगी, +5 -3, ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज को प्लस इंडिकेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव इंडिकेट करेंगे। सो +5, that means 0 is passing through an indicator 5 times during our reading, during tracing, and 0 is passing 3 times in anti-clockwise direction. For that you can take a value of n is equal to -3. Now let us go back to the main practical so that you can get the idea. So to find out, now you can easily understand how it works. This is our indicator, ये आपका इंडिकेटर है, राइट। तो यहां से कितनी बार 0 पास होता है वो आपको देखना है, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से रीडिंग लेना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसके पहले आपको फॉर्मूला समझना होता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, एरिया एफ इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट, ये आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनल रीडिंग दैट इज योर एफ माइनस आई initial reading plus or minus 10 n. N is the number of time crossing the 0 from that indicator on the counting disc, n plus c, right. तो अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सारा इंडिकेशन दिया है, हमारा फॉर्मूला क्या है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस फॉर्मूला में एफ क्या है, एफ इज द फाइनल रीडिंग, आई क्या है वो इनिशियल रीडिंग, एन जैसे मैंने आपको काउंट करना सिखाया वैसे द नंबर ऑफ टाइम द 0 मार्क ऑफ द डायल passes to the fixed index mark और that is your indicator, कि कितनी बार 0 जो है वो इंडिकेटर से पास हुआ either in the clockwise direction or anti-clockwise direction. Here is the sign, use the plus sign if 0 mark of the dial passes in a clockwise direction and use the minus sign when it is passed through that indicator in anti-clockwise direction. Now it is clear for you. n की वैल्यू कैसे लेनी है कि अगर हमारा 0 जो है वो इंडिकेटर से प्लस में जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो उसकी वैल्यू प्लस लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, प्लस और माइनस n है, ठीक है। तो प्लस लेना है या माइनस लेना है वो कैसे पता चलेगा, वो मूवमेंट के हिसाब से, राइट। देन m is the multiplying constant, okay, and it is also called as a sometimes a planimeter constant,
and it is equal to the area of per revolution of the planer, that means roller. That means आपको ये आईडी कार्ड में दिया होगा एम की वैल्यू आपको कितनी लेनी है. नॉर्मली ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, तो नॉर्मली एम की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है. ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इधर आईडी कार्ड में भी दी होती है. ठीक है, वो भी आपको ले सकते हैं. उसके बाद सी क्या है, वो एडिटिव कांस्टेंट है. ठीक है, तो सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है. तो विच गिव द एरिया ऑफ द जीरो सर्कल, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. द कांस्टेंट सी इज टू बी एडेड ओनली व्हेन द एंकर पॉइंट इनसाइड द एरिया. इसका मतलब एंकर पॉइंट आप समझते हो कि आपने जो इरेगुलर फिगर बनाई है उसका एंकर पॉइंट अगर फिगर के अंदर आपने रखा है, वो कैसे रखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा. तभी आपकी सी की वैल्यू जो है वो आपको आईडी में से लेके ऐड करनी है यहाँ, यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू ऐड करनी है, अदरवाइज सी विल बी द जीरो. ओके, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. आप पहले फॉर्मूला का ले लीजिए, उसके बाद आप इसका ले लीजिए. ठीक है, मैं फॉर्मूला का करता हूँ. ओके, नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, now we are ready to understand the complete practical. Okay, so I am showing how planimeter works. Okay, with a video, right? तो अब आप प्रैक्टिकल समझने के लिए पूरा तैयार है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. Okay, is this video is visible to you? And Yes, sir. okay, fine. So open with that this also. राइट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. ठीक है, मैं बीच बीच में आपको समझाता जाऊंगा किस तरह से ये काम करता है. ठीक है, तो प्लानिमीटर ये आपको दिख रहा होगा. ओके, सो ये इरेगुलर फिगर है. लाइकवाइज इसका हमें एरिया निकालना है. तो स्केल इंपॉर्टेंट है. तो स्केल जो है आप लेटर से इसकी फिगर की स्केल है 1/5000. हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू एफ इंटू F is equal to M, that is your multiplying constant. F is equal to final reading, I is equal to initial reading, N is equal to number of times zero marks cross to that indicator, and C is your additive constant. Now scale से हमें क्या मिलेगा, ट्रेसिंग आर्म की लेंथ मिलेगी. वो कहां से मिलेगी, आईडी कार्ड से. तो आईडी कार्ड लिया, हमने देखा कि स्केल कितनी है 1/5000. यस, तो हमारे ट्रेसिंग आर्म की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8.41 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर. ओके, ट्रेसिंग आर्म की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8.41. तो हम क्या करेंगे, प्लानिमीटर लेंगे और सी की वैल्यू भी दी हुई है. सी इज इक्वल टू कितनी है, 70.69. दैट इज योर कांस्टेंट. वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द आईडी कार्ड. ओके, value of multiplying constant we will take 100 centimeter square. Okay, which is already given in the ID card. Now the main concern is, you can see from the figure, this is an irregular figure. You can see we want to find out the area by blue line. उसके अंदर का जो भी एरिया है वो हम फाइंड करना चाहते हैं. राइट, ये हम प्लानिमीटर लेके आए बॉक्स में से, और ये मैंने कैसे पकड़ा है आप देख लीजिए. ट्रेसिंग, दिस इज एंकर पॉइंट, ये इनसाइड द फिगर होगा. तो सी की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 70.69. ठीक है, अगर इसको मैंने बाहर रख दिया तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब हम, हाँ, अब क्या कर रहे हैं हम, 8.40
जो 9 है वो ट्रेसिंग आर्म की लेंथ सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं उसको, आप खोल के वो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। वो विजिबल होगा आपको, राइट। मैंने क्या किया, 8.49, ये जीरो है वर्नियर पे, इसको कितना करना है, 8.47 और 49 यू कैन से, ठीक है। उसको फिक्स कर दीजिए इस तरह से। 8.41 हमने रेसिंग आर्म की लेंथ फिक्स कर दी। अब क्या है कि मैंने अंदर रखा है ट्रेसिंग आर्म, एंकर पॉइंट अंदर रखा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 70.69। you can see from this anchor arm is inside the figure, hence take C is equal to 70.69। ओके, वो आपको लेनी है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होता है कि हम अगर अंदर रखते हैं तो वो जो है हमारी फिगर मिलेगी नहीं, हमारा ट्रेसिंग जो पॉइंट है वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि छोटी लेंथ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंकर पॉइंट को बाहर लेके जाना पड़ेगा फिगर की, ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम फिगर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, है ना, हमें जो ट्रेस करनी है। अब क्या करेंगे, हम एंकर आर्म को अगर हम बाहर लेके जाते हैं तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, एंकर पॉइंट अंदर नहीं चलेगा क्योंकि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेसिंग आर्म वो पहुंच नहीं पा रहा है। अब क्या करेंगे, बाहर लेके गया मैं, कहीं पे भी फिगर के बाहर रख लीजिए, अंदर रखा उसके बाद बाहर रखा, ठीक है। अब इसको क्या है, रोटेट, इस तरह से हम ट्रैक करेंगे, ट्रेसिंग पॉइंट से ट्रैक कर सकते हैं फिगर को, राइट। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर में जैसे बताया कोई भी एक पॉइंट चुन लीजिए, उसको ए नाम दे दीजिए, और फिर हमें क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से इरेगुलर फिगर को इस तरह से ट्रेसिंग पॉइंट को हम फिगर पे मूव करेंगे, राइट। ये हमने ए पॉइंट पे रखा, अंदर नहीं रख पाएंगे, उसको बाहर रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंकर पॉइंट को बाहर फिक्स किया और उसके ऊपर अच्छे से लोड कर दिया, हाथ मैंने जो दूसरा हाथ है वो वहां पे हेवीली रख दिया क्योंकि वो मूव ना कर पाए। एक चीज खास ध्यान रखनी है, जब आप ट्रेस करते हो तब आपका एंकर पॉइंट फिक्स होना चाहिए, वो मूव करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लिख रहे हैं हम, आई इज इक्वल टू, ओके, वो आई कहां से पता चलेगा, यस, मैंने रीडिंग लिया 0.559 क्योंकि हमें इनिशियल रीडिंग चाहिए, क्योंकि ए पॉइंट जहां पे किया वो रीडिंग कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आपको ज्यादा अच्छा सा दिखेगा कि हमारा जो रीडिंग होता है आई, वो हमेशा पॉइंट के बाद 3 डेसिबल में होता है, ठीक है। तो ये जीरो कहाँ से आया, वो हमारी काउंटिंग डिस्क, हम पता चलेंगे यहाँ पे कि इंडिकेटर किसके बीच में, 0 और 9 के बीच में है, तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, मिनिमम 0। तो 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 55 कहाँ से आया, 55 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्नियर पे 0 है, वो 0 वाला कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया 50, क्योंकि रोलर पे 100 डिवीजन से 50, 51, 2, 3, 4 और 5, तो उसके 2 डिजिट कितने बन गए, 0 हो गया काउंटिंग डिस्क से, ठीक है। ये इनिशियल रीडिंग है। और 55 कहाँ से आया, ये आया यहाँ से रोलर के ऊपर से, 0 जहां मैच होता है वो रोलर के ऊपर से, ठीक है। तो 55 वहां से आ गया। और 9 कहां से आया, कौन सा नंबर का जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्या किया कि जीरो तो लिख दिया, जीरो लिख दिया, वो आया काउंटिंग डिस्क से। उसके बाद का 2 डिजिट कहाँ से आया कि ये जो जीरो वाला है जो वर्नियर का, वो कहाँ पे मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है 55 पे, तो हमने 55 लिख दिया, राइट। उसके बाद का डिजिट कहाँ से आएगा, ये वर्नियर पे से कहाँ से आएगा, कौन सा कपा मैच हो रहा है, आप देख लीजिए कौन सा डिवीजन, ये वाला नहीं मैच कर रहा है, ये वाला नहीं मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली रोलर के साथ कौन सा मैच कर रहा है, देखिए आप, ये सारा नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। 8 और 9 आप क्लोज देख लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो आपको 9 मिलेगा, तो ये वाला जो एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो 9 आ गया, राइट। सो दिस इज अवर इनिशियल रीडिंग। सिमिलरली अब हम वापस से वीडियो की ओर चलते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको रीडिंग लेना सिखाया। मैं प्रतीक सर को बोल देता हूँ 5 या 10 मिनट बाद चालू करें, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट सो आई कैन टॉक टू द प्रतीक सर। ओके, सो आई टॉक विद द प्रतीक सर, नॉट एन इश्यू, ओके। तो आप ये सीख के ही जाइए, ठीक है, अच्छे से। तो अब क्या करूंगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। मैंने दो स्क्रीन में डिवाइड कर दिया अपना स्क्रीन, आपको ये दिख रहा है, इज इट विजिबल टू यू मनन, ओके। आवाज नहीं आ रही है, यस सर। ओके फाइन, ओके फाइन। सो अब क्या करना है, आप दो स्क्रीन में मैंने डिवाइड कर दिया आपकी पूरी स्क्रीन को, कि जैसे ही मैं यहाँ पे रोटेशन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेस करता हूँ फिगर पे, वैसे यहाँ पे मेरा काउंटिंग डिस्क रोलर वो घूमेगा। तो हमें फिगर में एन की वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, एम, एम की वैल्यू हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल रीडिंग हमें फाइंड करना होगा, ये ट्रेसिंग करने के बाद इनिशियल रीडिंग हमने ले लिया 0.559 प्लस और माइनस 10 एन। तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी वो हमें यहाँ से मिलेगी, ठीक है, वो कितनी बार रोटेट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द जीरो इंडिकेटर जीरो इज पास टू दैट इंडिकेटर आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना, ड्यूरिंग ट्रेसिंग, आप ट्रेसिंग जब करते हो तो इसके साथ ये रोटेट होगा, ठीक है, और एंकर पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, आपकी सीट भी नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। तो अब जो आप देखेंगे, जैसे इस तरह से हमें ट्रेस करना है, तो एग्जैक्टली 6:27 मिनट पे मैं ये वीडियो बाजू वाला भी प्ले करूंगा, ठीक है, यहाँ पे 6:15 हुआ है,
627 पे ये बाजू वाला वीडियो में प्ले करूंगा। आपको मूवमेंट करके ये ध्यान रखना है कि कितनी बार जीरो क्रॉस हुआ, इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको आपको जोड़ते जाना है। जैसे कि एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो एन की वैल्यू +1 लिख दीजिए, उसके बाद वापस से क्रॉस हुआ तो +1 वन मोर टाइम, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज तो आप लिख दीजिए -1, उसके बाद सबका समेशन हम कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 615 पे ये प्ले कर रहा हूँ। 625 पे आपको आपकी नजर होनी चाहिए बोथ वे, ट्रेसिंग कर रहा हूँ उस पे, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद जो है जीरो कितनी बार पास हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने प्ले किया है, 627 पे मैं इसको प्ले करूंगा, ठीक है। अब आप देखिए जैसे मैं ट्रेस करते जाता हूं वो भी रोटेट करेगा, आपको मार्क करना है कितनी बार क्रॉस हुआ। यस, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू +1 बिकॉज इट इज पासिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू +1। अब देखना है नेगेटिव में जाता है कि नहीं। ठीक है, अब ट्रेसिंग हमने कर दिया, बी केयरफुल ड्यूरिंग द ट्रेसिंग, ओके। एंकर पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, और इस तरह से मैं ट्रेस करता हुआ, आप देख सकते हैं, मे बी ट्रेसिंग मोबाइल आ गया होगा दूसरा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, राइट। तो अब हमारा वीडियो क्या है, हमारी वैल्यू जो है फाइनल रीडिंग हम ले रहे हैं, ठीक है। वो फाइनल रीडिंग पे हमने उसी तरह लिया है, फोटोग्राफ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे 56 पे मैच हो रहा है, तो फोटोग्राफ देखते हैं 56 वाला रीडिंग कहाँ गया। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले फोटोग्राफ में, राइट। ये हमारे फाइनल रीडिंग के वैल्यूज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। कॉपी, न्यू, ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। और अब क्या करता हूँ, हमारा रीडिंग लेना है कौन से में आएगा, फाइनल रीडिंग हम ये ले रहे हैं, फाइनल रीडिंग एफ। तो पहले हो गया 0, इस तरह से आएगा 1 2 और 3, हमारा रीडिंग प्लानीमीटर का ऐसे ही होता है, ठीक है। तो 0 और 9 काउंटिंग डिस्क में से आप क्या लेंगे, 0, उसके बाद पॉइंट। अब हम यहाँ पे मैच कराएंगे, ये वर्नियर का 0 जो है वो कहाँ पे मैच हो रहा है, रोलर पे, तो कि 56 पे, राइट। So we have written the 56. Now where did we get that last digit? From the vernier. You can see कौन सा जो डिजिट है वो मैच हो रहा है, कौन सा वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे। रीडिंग क्या हमने लिया है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 561। तो आप इसमें कुछ माइनर इश्यू है, लेकिन आपको क्या करना है कि कौन सा का एग्जैक्ट मैच हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। 63। ओके, यू कैन, आपकी जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो है ये रीडिंग आया था 0.561, ओके। सो दैट इज अवर फाइनल रीडिंग, तो 0.561। तब हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया m की वैल्यू हमारे पास है, f की वैल्यू हमें मिल गई, i की वैल्यू भी मिल गई, n की वैल्यू हमने निकाल दी है ऑलरेडी, और c की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 0 है, क्योंकि वो एंकर पॉइंट बाहर है, ठीक है। तो अब जो वीडियो प्ले करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Also +1 rotation from the 0 to the indicator. So here you can see the value of n is equal to 1 plus 1, right, plus 1. So अब जो है कैलकुलेशन हम कर देते हैं। Now we have a formula, m into f minus I plus or minus 10n। m की वैल्यू 100 लेनी है, f क्या है वो नीचे से आएगा 0.561 माइनस i कितना है 0.559, राइट। प्लस लेंगे क्योंकि हमारा एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ था, दैट इज योर +1। और c की वैल्यू क्या लेंगे, 0, क्यों, क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट बाहर था, एंकर पॉइंट
आउटसाइड द फिगर, तो दैट्स वाई हम क्या लेंगे, सी की वैल्यू 0 लेंगे, 0। नाउ यूज योर कैलकुलेटर, 100। ठीक है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू, कितनी होगी, 0.002। So simple calculations are there. 100 into 10.002. राइट, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। सो 1000.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया मिला विद द स्केल ऑफ 1/5000। आपकी अगर स्केल 1/5000 है तो इस फिगर का एरिया जो है वो कितना होगा, 1000.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि प्लानीमीटर जो है वो कैसे काम करता है, राइट। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, वी हैव this is old fashion instrument, you can see we have a old fashion instrument, but right now we have a digital planimeter. If I am sharing a screen with you, and so digital planimeters are also there. आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से पेन भी आता है, ठीक है, पेन। तो वो पेन जो है इस तरह से आपको पेन सिर्फ रोटेट करवानी होती है। ये रहा आपका डिजिटल प्लानीमीटर, आई थिंक कर्वीमीटर, यस यू कैन सी इट, कर्वीमीटर इन द जापान। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया है कि एक पेन बना दी, और इस पेन पे आपको, जैसे मैंने रोटेट करके रीडिंग हमने लिया, वो ये वाली पेन जो है वो डायरेक्टली आपको रीडिंग फाइंड आउट करके देगी कि आपको इस पॉइंटर को सिर्फ फिगर पे रोटेट करना है, और कुछ प्री रिक्वेस्टेड आपको सेट करने की, आपकी स्केल कितनी है, ट्रेसिंग आर्म की लेंथ कितनी रखनी है। वो ट्रेसिंग आर्म की लेंथ इसमें नहीं आएगी, आपको स्केल ऐड करनी है, और फिगर का मतलब जो भी यूनिट आपको चाहिए वो आपको ऐड करना है। सो दिस इज द डिजिटल पेन प्लानीमीटर, okay, you can call that, okay. Now if you have any kind of doubt you can ask me, otherwise you can write down your roll number in the chat box, okay, and you can leave, okay. कोई डाउट है आपको, नंबर लिख दीजिए, और प्रतीक सर का लेक्चर जो है वो ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अंकित कुमार मिश्रा, Yes, sir. 1 minute, sir. यस। 1 minute.